Hi guys, how are you? Well, I'm Akriti Anand and a while back बहुत ही दुखद खबर आई है. One of the very famous actor सुशांत सिंह राजपूत he died और उसी वजह से आज जो मेरा लाइव सेशन था with my guest Madhura is not happening and I decided not to let go of this opportunity and still continue with this live session. यहाँ पे आके मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ and let's discuss कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या हो सकता है with somebody so successful, a person who's working hard working person, जिन्होंने इतने अच्छे बड़े बड़े मूवीज किए हैं, who was so successful. उनको ऐसा क्या हो सकता है that he took a step like this. He committed suicide, which is very very sad. So I'm going to talk about that. We'll talk a little bit about his life history. Hello everybody. Hi guys. How are you doing? Saurabh was here. Hi Saurabh. कैसे हो? क्या कर रहे हो? Well, I'm okay. I'm actually a little bit shaken क्योंकि अभी सुशांत सिंह राजपूत जैसे इतने बढ़िया सेलिब्रिटी की डेथ हो गई है and we got this news. So न्यूज़ में तो फिलहाल यही बताया जा रहा है कि he died because of depression. न्यूज़ में यही बोल रहे हैं कि he was taking some kind of medication for his mental health and then he was taken away. And then उन्होंने अपने आप को लटका लिया from the fan and he committed suicide. It's very sad that somebody could do that. आखिर क्या हो सकता है ऐसा क्या reason होगा कि कोई अपने आप को अपनी जिंदगी ले ले? Like what can be such situation? And we all always think that the media, the glamour industry, Bollywood, television, modeling, everything is very glamorous and people over there are extremely happy because उनके पास तो सब कुछ है दुनिया में. लोग क्या चाहते हैं? People want fame, people want money, people want recognition. Everything Sushant Singh Rajput had, but still he committed suicide. What could be the reason? Hi Shaurya, thank you so much. You're complimenting me on my looks. I did work on my looks, but this is something I did in the morning. एंड बस मैं मेरे लाइव सेशन की तैयारी कर रही थी और उसी बीच में मुझे मैसेज आया एक और मुझे पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत डाइड. एंड इनिशियली आई बेसिकली कुड नॉट बिलीव इट. मुझे यकीन नहीं हुआ कि somebody like him who's so young, he's 34, I've met him in person, he was always very happy, he was always this energy he had which was oozing out of him, he always was smiling to people, कभी ऐसे नहीं थे कि लोगों से कट के रहे या अलग रहे. एंड whenever I have seen him otherwise as well, लोगों के साथ में, तब भी he always looked like a person who was full of life. And somebody like him committing suicide is really shaking. Let's discuss a little bit more about his life. Thank you Deep Kiran. Thank you Deep Kiran. You loved me at INTM. Oh my god. I am so happy. Actually कल मैं अपने आप को थोड़ा गूगल कर रही थी. कभी मैं कर लेती हूँ अपने आप को गूगल. तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने सच में बहुत प्यार दिया था उस टाइम और अभी भी, और कुछ अच्छे कमेंट्स उस टाइम के मुझे मिले. So I was really happy and that's why I decided to post a picture from INTM on my social media page. Hello Mool Chandani. Thank you Megha. Thank you everybody for joining in. Guys, hi Saif. I'm good, but I'm just a little shaken with the new news I've got of the demise of our beloved Sushant Singh Rajput. By the way, latest news अभी ये है कि सुशांत सिंह की बॉडी पंखे से लटकती हुई पाई गई in his apartment in Bandra. एंड उनकी बॉडी को अभी निकाल के पुलिस ले जा रही है कामा हॉस्पिटल में टू फिगर आउट कि एक्चुअली हुआ क्या. पोस्टमार्टम किया जाएगा. सुशांत की फैमिली बिहार में है. उनकी मदर का कुछ टाइम पहले डेथ हो गया था एंड ही वॉज वेरी वेरी क्लोज टू हिज मॉम. एंड उनकी लास्ट जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो भी उनकी मॉम के बारे में ही है, जिसमें ही हैज़ रिटन सम डीप थॉट्स. ऐसे लग रहा था विद दैट पोस्ट और जो उस पर लिखा हुआ था कि ही इज़ not stable right now or maybe he's going through something. But आखिर ऐसा हुआ क्या कि कोई इस तरीके का कदम उठाए और अपने आप को अपनी जिंदगी ले ले? ये पहली बार नहीं हुआ है. We have seen there were a lot of news in on the social media platform and on the news sites जिसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी खुद की जान ले ली है, उसके बारे में बताया गया है.
वो एक्टर्स शायद इतने नामचीन नहीं थे, वो शायद इतने फेमस नहीं थे जितने सुशांत है, तो इसलिए उनके बारे में इतनी ज़्यादा बात हुई नहीं, कभी किसी ने की नहीं। लेकिन सुशांत बीइंग सो फेमस, उनकी डेथ ने एक्चुअली सभी को हिला के रख दिया है। एंड सभी न्यूज़ चैनल पे सिर्फ यही बात हो रही है, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये बात हो रही है। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट to not discuss something so important. I want to discuss actually ऐसा क्या हो सकता है कि कोई इतना फेमस इंसान, जिसके पास बेसिकली दूर से देखने में तो लग नहीं रहा कि कोई कमी होगी, उसने अपनी खुद की जान ले ली वो पंखे से लटक के। In what mindset would you do something like that? I invite all of you to please discuss this with me. अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझे मेरे साथ वीडियो कॉल पे आके अपना कुछ दुख या अपने कुछ व्यूज़ व्यक्त करना चाहते हैं ऑन दिस लाइव सेशन, सो आई इनवाइट यू कैन सेंड मी अ रिक्वेस्ट एंड आई विल टेक यू लाइव। अनफॉर्चुनेटली आज का जो लाइव सेशन था विद मधुरा नायक, वी कैन नॉट डू इट बिकॉज ये बहुत ही सैड चीज़ हो गई है। आई एम नॉट इन बॉम्बे बट शी इज़, एंड शी इज़ गॉन देयर, और बिकॉज वो इस दुखद घटना के बाद उनसे मिलने गई है, तो इसलिए she couldn't be live with me. Hello, hi Rehan, how are you? I have a lot of friends who've joined in. Hi guys, how are you doing? It's very sad that Sushant Singh died. Let's explore a little more about his life history. He was 34 years old, very successful person. Like किसी के लिए भी पहली बात आप सोचेंगे कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, 1.33 बिलियन, इतने सारे लोग हमारे देश में रहते हैं। उनमें से बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में जाने का मौका मिलता है। उनमें से भी बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जो टेलीविज़न पे आ पाते हैं, और टेलीविज़न में आने वाले लाखों लोगों में से भी सिर्फ आई थिंक 1% और 1 ही लोग होते हैं जो ये ट्रांजिशन ले पाते हैं, who can take this big leap of transforming from a television actor to a movie actor, and then to doing successful movies with all the big production houses like MSD, MS धोनी बहुत ही बड़ी मूवी रही थी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, जिसके बारे में हम सभी ने देखा है। इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो होस्टिंग द प्रीमियर ऑफ द मूवी, सो आई नो दैट्स वेयर आई मेट सुशांत। सो I have no words, I don't know what to say, I'm like shaken inside कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेघा इज सैड, थैंक यू फॉर टॉकिंग अबाउट इट। ये साजिश है, वेल साजिश भी हो सकती है। अगर आपको लगता है साजिश है तो क्या साजिश हो सकती है? देखो थोड़े दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की जो असिस्टेंट थी दिशा राइट, या दिशा, उनकी भी डेथ हो गई थी। आई मीन शी ऑल्सो कमिटेड सुसाइड, शी जम्प फ्रॉम अ बिल्डिंग इन मलाड फ्रॉम द 14th floor and died. This was, I think, some last week only this happened. Didn't become a big news. Then now Sushant Singh dying, can there be a connection? आखिर क्यों कोई इंसान बॉम्बे में इतना सक्सेसफुल होने के बाद सुसाइड कमिट करेगा? Well, I can definitely say from my own personal experience that there is a dark side to all the glitz and glamour that we see on television, that we see in the movies, on the big screen. लाइफ हमें लगता है कि एक्टर्स की बहुत इजी है क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है, बट ऐसा है नहीं। इनसाइड पीपल आर लोनली, और जैसा कि न्यूज़ में बता रहे हैं, सुशांत सिंह के डेथ का रीज़न कुड बी डिप्रेशन, इट कुड बी समथिंग मोर, कैन इट बी लिंक्ड टू दिशा's डेथ, कैन इट बी लोनलीनेस, कैन इट बी समथिंग एल्स, सब्सटेंस अब्यूज, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। अभी तक न्यूज़ में भी कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, तो जो बता रहे हैं मैं सिर्फ उसी पे ही बिलीव कर रही हूँ। हाय रुबिन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हाउ आर यू, वेयर आर यू दीज डेज? Megha is saying unbelievable news. Absolutely, it is a very unbelievable news, and I could not believe when I heard it. Actually, I had to go out and check on multiple platforms in order to verify the news. क्योंकि एक बार से अगर आपको लगे कि somebody like Sushant could die, कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत बुढ़ा इंसान नहीं है, बहुत यंग और सक्सेसफुल इंसान था वो। सुशांत की अगर करियर की बात करें तो ही स्टार्टेड हिज करियर प्रीटी अर्ली। ही वाज बेसिकली एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और इंजीनियरिंग करते करते उन्होंने डांसिंग ज्वाइन किया विद शामक डाबर्स ग्रुप टू
2005 में वो शामक डाबर के ग्रुप के साथ जुड़े थे, डांसिंग कर रहे थे एंड वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो उनके साथ डांस कर रहे हैं they are also doing acting courses. So from there he learned about acting and उन्होंने बैरी जोन से फिर acting का कोर्स किया and then he got passionate about acting and he decided कि उन्हें अभी इंजीनियरिंग में करियर नहीं बनाना है, उन्हें एक्टिंग में करियर बनाना है। और उसके बाद उन्होंने वर्क किया अपने एक्टिंग स्किल्स पे, सीखा। और जिस टाइम पे लोग स्ट्रगल करते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ काम ढूंढ रहे होते हैं, ऐसे डिफिकल्ट टाइम में सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ लिटिल डिफरेंट। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि वो दूसरे लोगों के साथ भी उनकी हेल्प करना चाहते थे। ही वॉज अ वेरी फिलोसॉफिकल पर्सन, ही वॉज ऑल्सो अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एंटरप्रेन्योर। और उन्होंने स्ट्रगल करते करते जब वो एक्टिंग के ऑडिशंस देते थे, एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे थे, उस टाइम पे वो एक बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशन भी चला रहे थे, एक एनजीओ चला रहे थे जिसका नाम था सुशांत फॉर एजुकेशन, जो कि वो अभी तक भी चला रहे थे। एंड उसमें वो बच्चों को पढ़ने के लिए आगे पैसे इन्वेस्ट करते थे, उनको हेल्प करते थे, so that people who want to study they shouldn't be stopped by the problem of dearth of money. So that kind of a person he was. Then एक्टिंग के लिए ऑडिशन देते उन्हें 2008 में अपनी पहली अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पे स्टार प्लस पे उनका शो आया था किस देश में है मेरा दिल। आफ्टर दैट ही गॉट पॉपुलर फ्रॉम 2009। पवित्र रिश्ता उन्होंने किया। पवित्र रिश्ता वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर शो एंड वहाँ उस शो के अंदर ही मेट अंकिता लोखंडे एंड दे बोथ वर इन अ रिलेशनशिप विद अनफॉर्चुनेटली ended in 2016, and after that Sushant was linked with couple of other women, but it was never a concrete thing जिसके बारे में आप बोल सके कि yeah, he was actually dating this person or no. Hi Chiku, hi Sahiba, hello everybody, welcome on my live session. Well, I am really sad today because of the sudden demise of a great actor like Sushant Singh Rajput. I really admired him from his first movie Kai Poche। मुझे याद है मैं देखने गई थी in the theater when it was released, and basically I loved the novel जिसके ऊपर काय पोछे बनी थी, तो इसलिए मैं वो मूवी देखने गई थी और तब से ही मुझे सुशांत बहुत पसंद थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल किया था। देन हिज मूवी डिटेक्टिव बॉय मुकेश पक्षी was also a very good movie. MS Dhoni was a brilliant movie. शुद्ध देसी रोमांस PK में उन्होंने रोल किया था। So all these movies that he has done, including Chichore, which was the biggest hit from last year, he has done great roles with wonderful production houses. ऐसा भी नहीं था कि he had any dearth of money, उनके पास पैसे की कोई कमी थी या काम की कोई कमी थी, ऐसा नहीं था। But let's try and explore the dark side of Bollywood, of Mumbai, कि क्या हो जाता है, क्यों लोग इतने अकेले हो जाते हैं, क्यों इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कि क्यों ऐसा होता है कि आप इतना बड़ा कदम उठा ले दैट यू वांट टू किल योरसेल्फ। बेसिकली सुसाइड करना एक गलत बात है यार, इट्स लाइक अ कावर्डली एक्ट। अगर आप सुसाइड करने का, अगर आई एम सॉरी टू से, बट अगर किसी के मन में भी सुसाइड का ख्याल आ रहा है तो प्लीज अवॉइड इट, डोंट थिंक अबाउट इट। इट मे बी अ कॉज ऑफ डिप्रेशन, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो इंडिया में मैंने देखा था ये रिपोर्ट 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसमें लिखा गया था कि इंडिया इज द 6th मोस्ट डिप्रेस्ड नेशन इन द वर्ल्ड। नाउ डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी हो गई है आजकल कि दुनिया में अगर हम 10 लोगों को उठाएं तो 10 में से एक इंसान तो आपको ऐसा मिलेगा जिसने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में डिप्रेशन या तो एक्सपीरियंस किया है या कर रहा है, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो that person does not feel himself. Why is this happening? On one hand we say that हम सब लोग बहुत कनेक्टेड हैं, हम सब लोग इंटरनेट से, सोशल मीडिया से रोज सबके टच में रहते हैं, जिससे चाहे उससे बात कर सकते हैं, जिसका चाहे उसका कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड everyone on this planet is getting lonelier as a person. Result is depression, and we see these kind of news every single day. बहुत सारे एक्टर्स हैं, फेमस पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने डिप्रेशन की वजह से अपनी जान दे दी। Why are we so depressed as a nation? Let's figure out the answer. In the meantime, let me read some of the comments. The 23 way is saying nobody generally talks about their mental health, they ignore it. I agree
with you. Hi Vipul Bhagat, how are you? So glad to see you here on my live session. Hi Nagin4 official, and Krunal is saying connected online. It's a different thing. Absolutely. Thank you ma'am for sharing us. Well, I'm all there, Megha. I'm all there to talk about everything that you want. I try and bring out topics. Basically अगर आप डिप्रेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ एक बहुत ही अच्छा बड़ा वीडियो बनाया हुआ है. इट इज़ ऑन यूट्यूब. आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी इसे देख सकते हैं. एंड आई फील डिप्रेशन से सबको लड़ना बहुत ज़रूरी है. बेसिकली मेंटल हेल्थ की बात, जो अभी एक कमेंट भी आया था विच वॉज वेरी नाइस, कि मेंटल हेल्थ की बात कोई करता नहीं है. हमारी कंट्री में मेंटल हेल्थ को ऐसे दबा दिया जाता है. बचपन में भी अगर हमें लगता है कि इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल, या मुझे दुख हो रहा है, या मुझे रोना आ रहा है, तो हमें दबा दिया जाता है. बोला जाता है रो मत. लड़कों को बोलते हैं ये रोना तो लड़कियों का काम है, डोंट क्राई. मर्द को दर्द नहीं होता. दिस काइंड ऑफ डायलॉग आर वेरी फेमस इन आवर कंट्री. और बेसिकली अगर आप लड़के हो तो आप बिल्कुल नहीं रो सकते हो. ये तो बहुत ही खराब बात है जो बोल दिया जाता है. वाई? क्राइंग इज अ वे टू लेट योर इमोशंस आउट. अगर आप रोते हैं तो आप एक तरीके से अपने अंदर का जो इमोशंस है उसे बाहर निकाल रहे हैं. और एक इमोशन को आउटलेट की बहुत ज़रूरत होती है. बिना आउटलेट के इमोशन अंदर ही अंदर दब जाता है और फिर वो डिप्रेशन जैसी बड़ी बीमारी का कारण भी बन जाता है. एंड दैट इज़ वाई पीपल फील एंजाइटी एंड अदर थिंग्स. बेसिकली अकेलेपन से डिप्रेशन होता है. और मुंबई जितनी ज़्यादा पॉपुलेटेड है उतनी ही ज़्यादा अकेली सिटी है. मैं खुद बॉम्बे में रहती हूँ. मुझे पता है हाउ लोनली और इट कैन गेट. स्पेशली लॉकडाउन की वजह से बहुत ही बड़ा इफेक्ट हो गया है लोगों के ऊपर वहाँ पे. पहली बात, मुंबई में ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से बहुत जगह नहीं है लोगों के रहने की. जो वहाँ पे अपार्टमेंट्स है वो इतने स्पेशियस नहीं हैं. वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है कि नेबर्स एक दूसरे से बात करें या एक दूसरे की खबर लें जैसे कि हम बाकी सिटीज़ में देखते हैं. मुंबई में आप बेसिकली काम करने जाते हैं, अपने घर पे रहते हैं, और बाहर जाते हैं, काम करते हैं, आ जाते हैं, काम करते हैं, आ जाते हैं. लोगों को आदत नहीं है अपने घर पे बैठने की ज़्यादा देर तक. मोस्टली पीपल इतने कंजस्टेड अपार्टमेंट में रहते हैं. मोस्टली लोग इतने सारे लोगों के साथ रहते हैं जैसा कि हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली द रियलिटी. इतने लोगों के साथ रहते हैं कि खुद की पर्सनल स्पेस मिल ही नहीं पाती. लोनलीनेस का बड़ा कारण. दूसरा कारण, अभी लॉकडाउन की वजह से जो घर के अंदर बंद हो गए हैं ना, हम बाहर नहीं जा पा रहे, लोगों से मिल नहीं पा रहे. एंड स्पेशली बीइंग एन एक्टर, यू आर सो यूज्ड टू ऑफ मीटिंग पीपल एवरी सिंगल डे. अगर वो तो खैर बहुत बड़े एक्टर्स हैं सुशांत सिंह, मैं तो कोई उनके मुकाबले में आई एम अ नोबडी. आई एम एब्सोल्युटली अ नोबडी व्हेन कंपेयर्ड टू सुशांत सिंह राजपूत. बट इवन आई बीइंग अ मॉडल एंड एक्टर एंड एंकर, आई एम नॉट यूज टू सिटिंग अलोन. एंड जब मैं बॉम्बे में थी, वो 2-3 महीने का जो लॉकडाउन मैं घर के अंदर रही हूँ, इट एक्चुअली टुक अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ एज वेल. मुझे भी अजीब लगने लग गया. वो दीवारें काटने को आ रही थी, क्योंकि आपको ना खुला आसमान दिखता है, ना आप खुली हवा में जा सकते हैं. सारे गार्डन, सारे जिम, सारे छतें सब बंद करा दी गई थी इन द लॉकडाउन. इनफैक्ट अगर आप बिल्डिंग से या अपने मेन रोड से भी बाहर निकलते हैं तो भी गार्ड का फोन आ रहा था कि अरे व्हाई आर यू गेटिंग आउट ऑफ योर हाउस, जस्ट स्टे इनसाइड. दिस इज द रियलिटी. लोगों को आदत नहीं है यार अकेले रहने की. और मुंबई में कोई भी अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता है. ज़्यादातर लोग जो आप एक्टर्स या मॉडल्स देखते हैं वो लोग दूसरे सिटी से बॉम्बे आते हैं, और दूसरे सिटी से बॉम्बे आने के बाद सब अकेले ही रहते हैं. उनका साथ कौन होता है? नाउ हु बिकम देयर फैमिली? Friends. That's why it's very important to have good people in your life, have good friends in your life. Unfortunately, if you're very famous, that also becomes difficult, क्योंकि जितने भी लोग आपसे मिलते हैं वो किसी न किसी फ़ायदे के लिए या किसी न किसी बेनिफिट के लिए आपके पास आते हैं, आपसे बातें करते हैं. एंड इट इज़ अ फैक्ट. आई हैव बिन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल ओवर द ईयर्स, एंड बहुत सारे लोगों से यही बात सुनने में मिलती है कि अरे बॉम्बे के लोग तो बहुत सेल्फिश होते हैं. वो कभी जब तक आपको कोई ना कोई काम नहीं होगा या कभी कोई ना कोई आपका मोटिव नहीं होगा तब तक आपसे बात नहीं करेंगे, तब तक आपके पास नहीं आएंगे, तब तक आपसे एक रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे. और आप जितने फेमस होते जाते हैं उतना ही ये बढ़ता जाता है. आई थिंक सैफ इज अग्रीइंग विद मी हियर. ट्रू, ही इज सेइंग थैंक यू सैफ. हेलो आंटी, हाउ आर यू? सुजा किचन. नमस्ते आंटी. आपके हाथ का आंटी, आज मैंने डोसा बनाया. फाइनली मैंने साउथ इंडियन बनाने की कोशिश की एंड इट टर्न्ड आउट वेल. थैंक यू. टीश्री सिंह, आई सॉ Kai Poche last night and finished it at 2:30 and
the end was Sushant's death. तीसरी, I think आपको पहले से ही शायद अंदाजा हो गया था what is going to happen to Sushant today. It's really shaking and I can't believe. पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है and this is the harsh reality of life that now a beautiful, talented actor like Sushant is no more with us. I remember Sachin is saying, I remember last year in 2019, Australian cricketer took break from cricket saying he was having mental problem issues, so took break. You're right, Glenn Maxwell was the person. Glenn Maxwell ne kiya tha. Hi, Deepakar. No, hi, sorry, Deepak Sarkar. Hello, how are you? Thank you so much guys for joining me here. I am really sorry, आज मैं अपने guest के साथ live नहीं आ पाई. Today was the episode 10th of वार्तालाप with Akriti and you guys are giving a lot of love to the show, but it's really unfortunate and I did not want to let it go. I wanted to take this opportunity to talk about something so important like this. Also dedicate this session to Mr. सुशांत सिंह राजपूत. उसका नाम देखो ऐसे मुझे फंबल करा रहा है. मोहित सिंह हाय. शाहरुख खान की भी डिप्रेशन. जी बिल्कुल, शाहरुख खान जी के बारे में न्यूज आई थी. दीपिका पादुकोण is someone who openly spoke about being in depression. So depression is a major cause for the unhappiness on this planet. और मुझे कई बार मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि what is it? Why do we see so much melancholy on this planet? Why are human beings so sad? ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले 200 सालों में हर साल ये सैडनेस इंडेक्स बढ़ता जाता है. खैर इंडिया में तो इतनी ज़्यादा रिसर्च होती नहीं है, स्टेटिस्टिक्स का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर अमेरिकन डेटा जो कि मोस्टली अवेलेबल होता है सबको, इवन स्टेटिस्टिका जो वेबसाइट है उस पर भी अमेरिकन डेटा बहुत ज़्यादा मिलता है, वर्ल्ड डेटा मिलता है, उसमें आप देखोगे तो हर साल इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दुखी होता जा रहा है. ये क्यों हो रहा है? According to me, I feel one of the main reason why human beings are being so sad is because हमने हमारे कोर से, हमने हमारे नेचर से दूर होने का फैसला कर लिया है. We human beings are a part of nature. पेड़ पौधे, हवा, आसमान, पानी, इन्हीं चीज़ों से मिलके, इन्हीं एलिमेंट्स से मिलके हम इंसान बने हैं. हम कोई आसमान से उड़ के नहीं आ गए. You know that we came on this planet and we started living and surviving. We actually are a byproduct of this nature in which we are living. और जितना हम इस नेचर से दूर होते जाएंगे उतना ही हम सैड होते जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली आजकल की जो दुनिया है उसमें हम छोटे छोटे बॉक्स जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, स्पेशली इन बिग सिटीज़. हम लोग छोटे छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं, हम लोग हवा से दूर हो गए हैं, हमारे घर में गार्डन्स नहीं होते हैं, हम पेड़ों के पास नहीं जाते हैं, हम लोग कंक्रीट पे वॉक करते हैं, हम लोग वर्कआउट के लिए जिम्स में जाते हैं जो भी जिसमें एसी से हवा आ रही होती है. हमने नेचुरल हवा पानी में जीना छोड़ दिया है, हम उससे डिस्कनेक्ट हो गए हैं. और जितना हम इससे डिस्कनेक्टेड रहेंगे उतना ही हम सैड होते जाएंगे एंड देयर इज जस्ट नो एंड टू इट. I've personally felt it. मैं जब से जयपुर आई हूँ, it's just been like 5-6 days कि मैं यहाँ पहुँची हूँ. मेरे घर में गार्डन है, बाहर आप देख सकते हैं. There's like beautiful garden which my mama has maintained. सिर्फ इस गार्डन में 10 मिनट वॉक करने से ना एक खुशी मिलती है. मैं सिर्फ बाहर रोड पे 10 मिनट वॉक कर लेती हूँ. आई फील एनर्जाइज्ड एंड हैप्पी. लाइक जितना भी मेंटल स्ट्रेस मेरे अंदर था when I was living in Mumbai, it's all gone. Well, सुशांत सिंह की डेथ का there can be another reason also. Mostly क्योंकि मैंने कहा था कि एक्टर्स को, सॉरी, कृणाल सिंह, 9 hours of work plus commute, no time for self and meditation. Absolutely right, Kunal. There's no time. हम लोग जितना टाइम, Bombay is all hush. It's all about running all the time. मैं खुद भी वहाँ रहती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि कब दिन के 12 बज गए और कब रात के 12 बज गए, क्योंकि टाइम ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, यूँ ही निकल जाता है. Here I am, I feel okay. अभी 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है. I feel time. It runs at a pace. But in bigger cities, it just goes like that. आप सुबह उठते हो, अपना काम खत्म करते हो, ऑफिस जाते हो, काम पे जाते हो, वहाँ से आते हो, आपको कम्यूटिंग में ही 1-1, 2-2 घंटे लग जाते हैं. उसके बाद आप आके इतना थक जाते हो कि ना आप बाहर जा पाते हो, ना आपके पास वर्कआउट के लिए टाइम होता है, ना आप मेडिटेट कर पाते हो. आप बस घर आते हो, खाना खाते हो, टीवी के सामने बैठते हो, सो जाते हो. दिस इज योर लाइफ स्टाइल. ह्यूमन बींग्स आर नॉट meant to just sit and relax. हम नहीं बने इसके लिए.
वी हैव टू वर्क आउट इन ऑर्डर टू बी फिट। हमारे अंदर एक पूरा मशीनरी है, पूरा सिस्टम है जिसे हमें बार बार पॉलिश करने की ज़रूरत है, जिसे हमें रोज़ काम की ज़रूरत है। अगर आप गाड़ी रख दोगे बाहर और गाड़ी को आप 100 दिन या 200 दिन नहीं चलाओगे तो उसमें प्रॉब्लम आने लग जाएगी, बिकॉज इट्स अ मशीनरी। सो आर वी ह्यूमन बींग्स इनसाइड इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। हमारे सारे ऑर्गन्स एक यूनिसन में काम करते हैं, एंड आवर ब्रेन इज द पावर फ्रॉम विच everything works. So it's very important to keep your mental health good and clean. दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, रोज आते हैं। अब किस थॉट को आप पावर देते हो वो थॉट आपकी रियलिटी बन जाता है। बेसिकली अगर आप लाइफ देखो तो क्या है लाइफ, व्हाट इज रियल, ये मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। व्हाट इज रियल, व्हाट इज रियलिटी? वेल इफ यू लुक अराउंड देयर इज नथिंग व्हिच इज रियल। जो मैं सोचती हूँ वो मेरे लिए रियल है, जो आप सोचते हो वो आपके लिए रियल है। बेसिकली every individual on this planet is creating his or her own reality at every point of time. So nothing is real. What you think is real. And अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट लाओगे तो वही आपकी रियलिटी बन जाएगी, और धीरे धीरे आप उस नेगेटिविटी में इतना डूब जाओगे कि once you will feel that there is no way out of it. And unfortunately, according to the news and media, maybe this is what happened to Sushant. दो मुझे नहीं लगता कि डिप्रेशन से ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझे ज़रूर लगता है कि देयर इज़ सम अदर रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज ऐसे ही नहीं होता कि आपकी असिस्टेंट मर जाए और उसके एक हफ्ते बाद आपका सुसाइड हो जाए। इनफैक्ट लास्ट नाइट न्यूज़ में मैं देख रही थी इंडिया टीवी पे, वहाँ पे बता रहे थे कि लास्ट नाइट सुशांत के घर पे पार्टी चल रही थी, उनके कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे थे उनके साथ, वो निकले और फिर सुबह जब उनका वो आया, वर्कर आया, हाउस हेल्प आई, तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया बाय लुकिंग एट सुशांत्स डेड बॉडी हैंगिंग फ्रॉम द फैन। ऐसी एक न्यूज़ पिछले महीने भी आई थी, मीरा रोड या वसई में कहीं पे, नवी मुंबई के साइड पे, एक एक्टर थे जिन्होंने कुछ सीरियल्स किए थे, लाइक सेमी नोन। ही कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग फ्रॉम अ फैन। उसकी वाइफ ने उसकी डेड बॉडी देखी, पड़ोसियों के पास गई, हेल्प मांगी, बट किसी ने घर में घुस के बॉडी नहीं उतारी, किसी ने घर में घुस के उनकी हेल्प नहीं की। जब तक पुलिस नहीं आई कोई वहाँ पे गया नहीं उनकी हेल्प करने, वो लेडी की हेल्प करने, उस वाइफ की हेल्प करने, हु वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड लुकिंग एट हिज हस्बैंड डेड हैंगिंग फ्रॉम द फैन। एंड थिंग्स लाइक दिस शेक मी। मेरे को अंदर से ऐसे दुख होता है कि क्यों ऐसा कोई कर सकता है, क्यों कोई इतना सेल्फिश हो सकता है कि वो किसी की हेल्प, मर गया यार उसकी तो हेल्प करो आप। बट क्योंकि बॉम्बे में नहीं होता है ऐसा और लोग अपने अपने आप में इतना ज़्यादा सेल्फ इन्वॉल्व हैं, that was also another reason why my parents were very very scared and they wanted us back home in Jaipur. Kunal बोल रहे हैं many people feel lonely even after being in crowd. This realization can also be a trigger. Absolutely, I agree with you. In fact, actors की लाइफ में, जो ग्लैमर फील्ड की लाइफ में है, उनके साथ ज़्यादा ऐसा होता है, बिकॉज हम अपने अंदर जो चल रहा है, मेंटल दिमाग में जो चल रहा है, वो बाहर बता नहीं सकते। अगर हमने बोल दिया लोगों के सामने तो वो कभी भी न्यूज़ बन जाती है, कुछ भी आप बोलो वो न्यूज़ बन जाती है। आप चाहते हो कि आपकी पॉजिटिव न्यूज़ सबके सामने रहे, कोई भी अपनी नेगेटिव न्यूज़, अपना नेकेड ट्रूथ दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता है, इसलिए वो अंदर ही रखते हैं, और इसी वजह से दोस्त भी कम होते हैं, और जो दोस्त हैं वो भी पता नहीं कि रियल है कि नहीं, या फिर सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ है। सो पॉसिबली हो सकता है कि सुशांत वाज लोनली, ही डिड नॉट हैव एनी कॉन्क्रीट रिलेशनशिप, और ही वाज 34। सो आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम आपको भी लगता है कि आपकी फैमिली हो, परिवार हो, कोई आपके साथ हो जिसके साथ आप यू नो यूर गुड, यूर बैड, यूर अगली, योर ब्यूटिफुल लाइफ यू कैन शेयर, बट ही वाज मिसिंग दैट। एंड एक बड़ी ही अजीब सी बात मैंने नोटिस की थी राइट बिफोर आई स्टार्टेड। मैं विकीपीडिया पे सुशांत सिंह राजपूत को चेक कर रही थी, एंड विद इन like an hour of his death the Wikipedia page was updated, and the actor जिसको 2 घंटे पहले सुशांत सिंह राजपूत इज में बात हो रही थी, वहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत वॉज आ गया, उनकी डेथ का टाइम भी वहाँ पे लिखा था, एंड
it's extremely unfortunate that we lost a beautiful talent like him. I used to appreciate his work, and I used to admire everything that he did. I used to admire the kind of person he was, and I am extremely sorry for him and his family that something like this happened to him. I hope कि और किसी के साथ ऐसा ये ना हो, और अगर आप में से कोई भी अगर मेंटल हेल्थ में अगर आप कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी स्ट्रेस से, ट्रॉमा से, एंजाइटी से, या ऐसी कोई भी डिप्रेसिव चीज़ों से गुजर रहे हैं, थॉट्स से गुजर रहे हैं, तो आई हैव वन सजेशन फॉर यू. प्लीज़ डोंट कीप इट टू योर सेल्फ. रीच आउट टू पीपल. लोगों से बात करो, अपने ट्रस्टवर्दी लोगों से बात करो, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करो इसके बारे में, अपने फैमिली से बात करो. योर पेरेंट्स, योर सिस्टर, योर कोर फैमिली इज आर द ओनली पीपल हु आर गोना बी विद यू. उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है. रीच आउट टू पीपल. इफ़ यू कैन नॉट रीच आउट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, देयर आर सो मेनी psychiatrists out there, there are shrinks out there are mental health doctors who specialize in all these things. You can reach out to them, talk about your issues. Don't keep your problems to yourself. This is not only for people who suffer from depression, this is for everyone. जब तक हम अपनी प्रॉब्लम अपने तक रखते हैं ना, तब तक वो बड़ी होती जाती है. The moment you start sharing your problems become less, because you realize you're not the only one who has a problem. दुनिया में हर इंसान के पास इतनी ही प्रॉब्लम है, इनफैक्ट आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. सो जस्ट ट्राई एंड हैव पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव जो है ना, यही आपकी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखता है. क्योंकि अपने ही अपने ख्यालों में डूबे रहेंगे तो हो सकता है कि आप कभी कभी नेगेटिविटी में चले जाएं, एंड समथिंग bad like this can happen with you also. So thank you so much for listening to me today. Thank you so much for joining me on this live session. Today's live session was dedicated to Sushant. I really hope that his soul rests in peace, and we will miss you, Sushant.